trigonometry. The word trigonometry derived from Greek word, derived from the Greek word, derived from the Greek words. The words are trigonometry. इसका मीनिंग होता है, means three. मीनिंग लिख रहे हैं mean three. Try the meaning three. दोनों मतलब sides and factor the meaning. Measure मतलब माप. मेजर मतलब माप. ये अपन ने इसको मेजर करना. Trigonometry meaning is three sides measurement. Three sides measurement. ये हो गए सारे. And discuss about this x and y. This is the Cartesian plane. This is the Cartesian plane. And in this Cartesian plane, there is any point in the first quadrant. This is the point Q, x or y. This is any point x. There is any point x in first quadrant, and we join with the origin, and it makes an angle theta. Angle theta with the x-axis in anti-clockwise direction. So it gives right angle line. We know that this point x is equal to x-axis. This is x. This is x. And this is y. O to the A is x and O to B is y. So x and y move together, we get a point Q and gives a right angle triangle. Gives a right angle. So we discussed the ratio of the three sides of this right angle triangle. Ratio of this triangle. Ratio of the sides of this triangle. तो ट्रायंगल किस तरीके में हो सकती है? ट्रायंगल छोटी भी हो सकती है. ट्रायंगल is also triangle. It's also triangle. Yes, sir. And this triangle फिर बता दो. अभी triangle. और आगे बता दो. अभी triangle. There are so many triangles. छोटी भी है. greater से greater भी. But angle से angle थीटा से triangle बन रही है. But triangle का क्या कट रहा है? Side की रेशियो कट रही है. Perpendicular base से फर्क आ रहा है. हाइपोटेन्यूज होता है चेंज हो जा रहा है. चेंज की हो रही है. थ्री साइड्स एंगल से कट रहा है. तो इस चीज को अपन डिस्कस करना है इन दिस चैप्टर. व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रायंगल? वो ट्रायंगल की रेशियो की हो सकती है. ट्रायंगल की रेशियोज हो सकती है लाइक दिस. फर्स्ट P upon H, P upon H होता है, P upon B, B upon P, इधर attach upon B, इधर attach upon B. इससे क्या होती है? रेशियो 6 रेशियो होती है. या मैं P upon H बोलता हूँ, या H upon B बोलता हूँ. ठीक है? मैं B upon H बोलता हूँ, या H upon B बोलता हूँ. या मैं P upon B बोलता हूँ, या B upon B. और ये रेशियो आने वाले क्या है? रेशियोस. इन रेशियो को ना देता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस. ना देता ट्रिग्नोमेट्रिक ratios with the reference of this angle theta. तो इस रेशियो को अपना नाम था दैट इज साइन थीटा. इज कॉल्ड साइन. साइन की फुल फॉर्म है साइन
दिस इज साइन। आपको शॉर्ट लिखा है SIN, वैसे है ये साइन, SIN साइन। थीटा, अगर थीटा नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं है, साइन इज नथिंग। साइन की है रेशियो ऑफ द P एंड H विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा चेंज करिए होगी साइन, हाँ साइन थीटा। हाँ, अगर P अपॉन H है तो उनको बोलेंगे साइन थीटा, अगर B अपॉन H है तो उनको बोलेंगे कॉस, बोलेंगे cos थीटा। एंड इनको बोलेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये अब्रिविएशन है कोसाइन, इनको बोलते हैं कोसाइन। एंड इनको बोलेंगे tan थीटा, ये फॉर्म है टेंजेंट, called tangent. This is called tangent. और इधर इनको बोलेंगे cot थीटा, और जब बोलूंगा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट एब्रिविएशन नाम लग रहा है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड sec थीटा, secant थीटा, sec थीटा बोलेंगे secant, second full form है secant, and that is cosec थीटा या cosecant थीटा। cosec full form है cosecant या कि cosec। तो ध्यान दो, इस ट्रायंगल को थोड़ा साफ करके ड्रॉ कर लेते हैं। We are discussing in only first quadrant and right angle triangle. We are discussing the trigonometry in the right angle triangle in the first quadrant. In the first quadrant, there are four quadrants. There are four quadrants, but we are discussing in the first quadrant. The triangle is like this. A, Q, R, and that is called base. जिनको बोलते हैं B, perpendicular जिनको बोलेंगे P, hypotenuse H, hypotenuse H, ठीक है। H समझे, तीन साइड है, राइट एंगल है, थ्री साइड्स, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। अगर मैं P अपॉन P बोलूं, दोनों की बोलूंगा, P अपॉन P की है 10, P अपॉन P की है 10, ये का 10। और ध्यान दो सारे बच्चे, उन्हें फार्मूले याद करना चाहिए। हाउ टू लर्न दिस फार्मूला, वो फार्मूला है, देखो ध्यान दो। पंडित, पतरी, प्रसाद, हर हर, हर हर बोले, सोना, चांदी, क्या हो गया? पंडित प्रसाद अपॉन हर हर बोले सोना दे दो। एस फॉर साइन, एस फॉर साइन, P for perpendicular and H for P upon H। समझ रहे हैं? S मतलब साइन, P upon H साइन, ठीक है। C for चांदी, C for cos, C for cos, B for base and H for hypotenuse, P upon H, T for tole, T for tangent, T for tangent, P for facade and P for perpendicular, B for गोले, B for base। और याद रखिए, उनका याद रखनी है। साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट। अगर वो P अपॉन H है तो H अपॉन P क्यों है कोसिकेंट। साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट एंड कॉस का रेसिप्रोकल की है सीकेंट। कॉस देखो, कॉस है ये B अपॉन H होगी, H अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंट।
एंड tan दरअसल ये cot tan की है b अपॉन p अपॉन b cot की है b अपॉन समझ आई। तो मतलब these are the trigonometric ratios and there are 6 trigonometric ratios. These are the 6 trigonometric ratio and here sin theta the meaning आ रही है कि sin multiply theta. इसका मतलब आ रही है this is not the meaning of sin theta is equal to sin multiply theta. Sin की है ratio of the side है with reference of theta. समझ आ रहा है कि ਆਪਾਂ p upon h बोलता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले ली है तो उस p of h को की बोलेंगे ਉਹਨੂੰ बोलेंगे विद रेफरेंस ऑफ एंगल sin थीटा बोलेंगे sin थीटा क्या हो गया द दो साइडां राइट एंगल की रेशियो p upon h की sin द रेशियो की रहनी है p upon h आइदर थीटा का ऐसे होवे थीटा का ऐसे होवे ये इधर हो गए दो सारे उसको थीटा और राइट एंगल थीटा इज एन एक्यूट एंगल थीटा इज एन एक्यूट एंगल ना डिग्री नहीं हो देखो ध्यान में सारे बच्चे अगर थीटा से बन गया थीटा से बन गया ऊपर बाकी ध्यान हो गए अगर थीटा से बन गया ना ठीक उत्तर बने इतने खड़े हैं तो पॉइंट सामने है तो इधर सेम रहना है इधर सामने क्या आना है परपेंडिकुलर एंड 90 के सामने क्या आना है हाइपोटेन्यूज ऐसे सामने की है हाइपोटेन्यूज और मेरा बच्चे भी हो गया ध्यान दो ठीक है सामने क्या आना है 90 डिग्री 90 के सामने क्या आना है हाइपोटेन्यूज एंड जैसे थीटा के नाम की लाइन दिस मतलब की लगे परपेंडिकुलर भाई यार मैं कह रहा है जिससे खड़े हो ना पूरे सामने आज उसकी रहा है 90 डिग्री उनके सामने दोबारा 90 डिग्री है उसे जाके आप 90 डिग्री हम जाइए मैं उधर देख रहा हूँ बालक तरफ तो बालक 90 डिग्री से खड़ा है मैं बल पे खड़ जाऊंगा तो मैं वहां फर्स्ट 90 डिग्री नजर आऊंगा क्या दिलो सिंपल गल यही है मैं इतने खड़ा वो सामने दीवार में 90 डिग्री नजर आ रही है मैं दीवार से खड़ा जाऊंगा तो मैं फर्स्ट 90 डिग्री नजर आऊंगा उस मोरे दीवार से चढ़ूंगा मैं तो चढ़ूंगा अंदर जा रही है तो मेरा सिर पैरेलल नहीं होना फर्स्ट जो जी सामने 90 डिग्री होगी समझ आई हाँ जी थीटा सामने 90 डिग्री रहना हमेशा क्या 90 डिग्री सामने क्या रहना है हाइपोटेन्यूज तो थीटा नाम की लाइन की रहनी है दिस ये मैं ट्रायंगल से बोलो जेडी में ट्रायंगल मतलब ये चीज हाइपोटेन्यूज चेंज हो रहा है दो चेंज हो रहा बाकी चेंज हो देखो थीटा चेंज हो सकता है इतना से चला गया परपेंडिकुलर किधर आएगा बेस पे होता है हाइपोटेन्यूज का हो नहीं रहा हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ मैं दीवार देख रहा था सामने तो दीवार पे जी चीजें 90 डिग्री खड़ी है और मैं दीवार जाके खड़ जा इधर देखा फर्श तो मेरे जूते इस दीवार से 90 डिग्री हो जाएगी नहीं तेरे समझ आई गल पर छोटी गल है मेरे पास समझ क्यों नहीं आ रही मैं दीवार चढ़ नहीं सकता है ना मतलब भी सोचो ना कि क्या कमरा है आप फर्श से है एंड आप फर्श से है ना बोल ही है आप फर्श मिला के दीवार ना अगर आप सेक्सी होते हैं दीवार 90 डिग्री बट सर ये पैरेलल है तो दीवार की डिग्री का स्पेस है वो हाइपर लाइन ऑफ साइड जो मैं देख रहे हैं फिर मैं कुछ चीज देख रहा ना मैं देख रहे हैं मैं आई के ना एक लाइन जा रही है ये लाइन है वो हाइपोटेन्यूज वो बेस तो की होगी हाइपोटेन्यूज मतलब बेस से क्लियर देखो सिंपल गल है गल समझने वाली गल है कि जो तुम फर्श पे है ना फर्श ऐसे खड़े हैं तो सामने 90 डिग्री ये गल देख ना वो सामने 90 डिग्री है लेकिन लेट भी अगर मैं इधर खड़ा वो सामने 90 डिग्री वो इतना करिए कि इस कपड़े को घुमाइए ऐसे एक दीवार ऐन खड़ी होगी वो दीवार तले आ जाएगी हाँ जी
पता है तो जी चीज परपेंडिकुलर सी वो बेस होगी और जी बेस भी होगी परपेंडिकुलर वो कितने हैं समझ आई इमेजिनेशन सोचना पैना थोड़ा देर ठीक है तो ये पहली एक्सरसाइज के फार्मूले साडे किहड़ी एक्सरसाइज दे फर्स्ट एक्सरसाइज बाकी आप छोटे छोटे फार्मूले पढ़े हैं जिदा a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर a क्यूब - b वो तो रहने रहने वो हर था यूज होगा ठीक है सो नाउ एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन पंडित बद्री प्रसाद अपॉन याद लिख लो सब कुछ लिखे नहीं लिख लो वीडियो बंद कर लिख लेंगे